Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 4th. In class 4th EVS, we have started our chapter 11, that is Good Food Eat Together. So today we are starting part 2 of this chapter. Let's start. So here is an interaction. You can see there are 3 people sitting. So what they are talking about, let's see. So this person says that in our Mewar, everyone eats malpua, deep fried pancakes, and with great pleasure on the day of Hariyali Amavasya. So this person is from Mewar. So Mewar is a particular part from our state. So in our state we are having different kind of people in different kind of areas. So one of the person is from Mewar and he told that in our Mewar people eat malpua. When they eat malpua on the day of Hariyali Amavasya. तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है गुड फूड ईट टुगेदर बहुत ही प्यारा चैप्टर है। यहाँ हम बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं खाने पीने के बारे में। तो यहाँ 3 लोग बैठे हैं और वो तीनों लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, इनके बीच एक इंटरेक्शन हो रहा है। सो दिस पर्सन, पहला व्यक्ति क्या कहता है कि हमारे मेवाड़ में, क्योंकि वो मेवाड़ से है तो वो कहता है हमारे मेवाड़ में हरियाली अमावस्या के दिन मालपुए बनाए जाते हैं और मालपुए बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और हम सब बड़े चाव से हरियाली अमावस्या को मालपुए खाते हैं। नाउ दिस पर्सन हु इज फ्रॉम Marwar, what he says, he says that we in Marwar make खीच on हरियाली अमावस्या डे। तो वो व्यक्ति जो मारवाड़ से है उन्होंने क्या बताया कि हमारे यहाँ यानी मारवाड़ में हरियाली अमावस्या के दिन क्या बनाया जाता है, खीच बनाया जाता है। Now this one, that is a third person, and this person is telling that during those days, Teej festival of rainy seasons month is celebrated in Jaipur. So this person is from Jaipur and he said that on this occasion घेवर is made of rabdi which is a sweet concentrated milk. तो तीसरा व्यक्ति जो जयपुर से है उसने क्या कहा, उसने कहा कि जब आपके यहाँ हरियाली अमावस्या मनाई जाती है उन्हीं दिनों में उस रेनी सीजन में उस बारिश के मौसम में हमारे यहाँ पर तीज का त्योहार मनाया जाता है। जयपुर में तीज का त्योहार मनता है और उस तीज के त्योहार के समय हमारे यहाँ रबड़ी के घेवर बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये जो इंटरेक्शन है, ये जो अंतरक्रिया है, ये आपको क्या बताती है, ये बताती है कि हमारे राज्य में, हमारे स्टेट राजस्थान में अलग अलग तरीके की चीजें, अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट दिस इंटरेक्शन दैट these 3 people are from different regions of our state Rajasthan and they are discussing about the food or the dishes being prepared on specific occasions in their area. Now on festivals in our homes too, sweets and special delicacies are made at different places and for different festivals different types of delicacies are prepared. तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे घरों में भी अलग अलग त्योहारों को अलग अलग स्वादिष्ट चीज़ें बनाई जाती हैं, अलग अलग मिष्ठान बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे राज्य में इस बारे में बहुत विविधता है। हमारे यहाँ अलग अलग त्योहारों को अलग अलग जगह पर बहुत सारी अलग अलग डिशेस या स्वादिष्ट खाने की चीजें बनाई जाती हैं। Now see, here is a table. So here we can see that on different occasions what kind of things or delicacies are being prepared. So there's a festival or celebration. Now here is special food prepared during that occasion. So one is given, one situation is given and those 3 जो columns हैं they are being left. तो बच्चों यहाँ एक टेबल है, एक तालिका है जहाँ एक तरफ आपको त्योहार बताना है और दूसरी तरफ उस त्योहार पर क्या खास चीज, कौन सी खास मिठाई या चीजें आपके यहाँ बनाई जाती हैं। जैसे पहली स्थिति में आप देख रहे हैं कि गणगौर पर, गणगौर का जो त्योहार है, घेवर इज प्रिपेयर्ड यानी घेवर बनाया जाता है या घेवर को मिठाई के रूप में खाया जाता है। नाउ देयर इज अ सिचुएशन, आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू थिंक अबाउट द आंसर, देन
and I'll tell you the answer. So bundis, laddus are distributed in schools. So if there is some festival or occasion, on that occasion bundi laddus are distributed in schools. So just try to remember that. Yes, I hope you have answered that thing, that bundi laddu are distributed in our school on Republic Day and Independence Day. तो बच्चों बूंदी के लड्डू हमारे स्कूल में कब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कब बांटे जाते हैं? आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन और गणतंत्र दिवस के दिन ये किया जाता है. Now the next situation here is that ओलिया और गुलगुला, पचकुटा और केर सांगरी vegetable and puri, that is one day stale food is prepared. So try to remember कि किस दिन गुलगुले बनाए जाते हैं, पंचकुटा बनाया जाता है या केर सांगरी की सब्जी बनाई जाती है, साथ में पूरी बनाई जाती है और इसे हम बासी खाना कहते हैं, यानी जिस दिन बनाते हैं उस दिन नहीं खाते हैं, उसके अगले दिन खाते हैं. सो ऐसा कभी किया जाता है, कौन से त्योहार पे किया जाता है? यस, यू रिमेंबर इट राइट, ये किया जाता है शीतला अष्टमी पर. सो दिस इज द festival of Shitla Ashtami. This was for Independence Day and Republic Day. Independence Day and Republic Day आप जानते हैं. अब शीतलाष्टमी को बासी भोजन बना के खाया जाता है. Now the next thing is सेवैया और वर्मीसेलाई. So do you remember that in our country on which festival सेवैया और वर्मीसेलाई are made and they are being eaten? So it is on the festival of Eid. तो बच्चों हमारे यहाँ सेवैयाँ या वर्मीसेलाई कब बनाई जाती हैं? तो आप जानते हैं हमारे देश में एक त्यौहार है जिसको ईद कहते हैं और उस त्यौहार को यहाँ लोग बहुत मीठी सेवैयाँ बनाकर खाते हैं. नाउ good food, bad food. Many times during summers the food made in our house gets spoiled, and sometimes food made in big feasts too gets spoiled. At that time spoiled food has to be thrown out so that we don't fall sick eating bad food. So dear students, now we have to know about good food, bad food. So many times during summer season the food which is made in house and kept, that gets spoiled. So you must have heard your mother or anyone else saying that no, this thing has spoiled, now we can't eat this thing. And similarly sometimes the food which is made in big feast, that also gets spoiled, and that food which is spoiled has to be thrown out and we have not to eat that food. I know that you already know this thing. तो बच्चों यहाँ हम अच्छे और बुरे खाने को समझ रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं. तो कभी कभी गर्मियों में आपने घर पे देखा होगा कि कोई चीज़ बनाई गई, उससे थोड़ा समय रख दिया गया, सुबह बनाया और शाम तक वो चीज़ खराब हो जाती है. तो आपकी मम्मी या कोई भी बड़ा घर में कह देता है कि नहीं अब ये नहीं खा सकते, अब ये खराब हो गया है. इसी प्रकार कई बार बड़े जो आयोजन किए जाते हैं, बहुत सारा खाना इकट्ठा बनाया जाता है, तो वहाँ भी कुछ कारणों से खाना खराब हो जाता है और वो खराब खाना, वो खाना जिसका स्वाद बदल गया है, उस खाने को हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो खाना आपको बीमार बना सकता है. Now, many times we eat food outside our homes, that is from small stalls or in hotels. This food may not be bad, but we are not sure if it is clean or not. For food hygiene, it is important that the materials being used in making food like utensils, knife, raw food items, vegetables, etc. should be washed and cleaned. So many times we eat food outside our homes, like on some stalls, thela, or in some restaurant or hotels. So we
are not sure about that food, whether that is cooked properly with maintenance of food hygiene or not. तो बच्चों यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कई बार हम घर के बाहर खाना खाते हैं, कभी हम किसी ठेले से, किसी स्टॉल से या किसी रेस्टोरेंट या होटल में कोई चीज़ खाने लगते हैं या खाते हैं, तो हम ये नहीं जानते कि वो खाना वास्तव में अच्छा है या बुरा है। लेकिन ये बात सच है कि वहाँ पर कितना अच्छे तरीके से फूड हाइजीन का ध्यान रखा गया है, यानी खाने से संबंधित साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, उस पर ही निर्भर करता है कि खाना अच्छा होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भोजन बनाया जाता है तो उस दौरान कई सारी चीज़ें उपयोग में आती है, जैसे खाने के बर्तन, बनाने के बर्तन, उसके अलावा चाकू या जो भी हम कच्चा सामान उपयोग में ले रहे हैं वो, सब्जियाँ, और इन सब चीज़ों को अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से धोना ज़रूरी होता है। फूड हाइजीन या भोजन की जो साफ सफाई है वो एक आवश्यक चीज़ है, उसका हमें ध्यान रखना ही चाहिए। नाउ there are some factors which actually need to be taken care of while preparing the food. So the cook's hand should be clean, यानी जो व्यक्ति भोजन बना रहा है उसके हाथ हमेशा साफ होने चाहिए, उससे पहले हाथों को धो लेना चाहिए। The second thing, water should be clean. Water is always used while making the food or cooking the food. So water which you use for cooking the food should be clean, यानी जो पानी आप भोजन बनाने के लिए उपयोग ले रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। थर्ड थिंग इज द फूड मस्ट बी कवर्ड, यानी जो खाना बना रहे हैं आपको उसको अच्छे से ढक के रखना चाहिए। Then the next thing is to remain healthy. It is also important that we eat clean, अनकंटामिनेटेड एंड फ्रेश फूड, यानी हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हमें कोई बीमारियां ना हो, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि हम साफ सुथरा खाना खाएं, ऐसा खाना जो कोई खराब ना हुआ हो और जो ताज़ा हो, जो पुराना रखा हुआ ना हो। Then the next thing is our food should include fruits, green vegetables, milk, pulses and other different food varieties. We obtain different nutritious elements from each of these. So हमारे खाने में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, हमें सिर्फ एक दो चीज़ें ही नहीं खानी चाहिए, हमें फल भी खाने चाहिए, हमें हरी सब्जियां भी खानी चाहिए, हमें दूध भी लेना चाहिए, हमें दालें भी खानी चाहिए और इसी प्रकार हमें खाने में बहुत सारी वैरायटी रखनी चाहिए। यानी सिर्फ रोटी ही खाते रहना, सिर्फ एक ही सब्जी खाते रहना कभी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। सो वास्तव में हमें इन अलग अलग प्रकार की चीज़ों को खाने से क्या फ़ायदा है, क्यों हमें दालें, चावल, रोटी, सब्जी, फल सब कुछ खाना चाहिए, क्योंकि इन सब से हमें पोषण मिलता है, अलग अलग पोषक पदार्थ इन चीज़ों से हमें मिलते हैं। So dear students, it was all for part 2 of this chapter, Good Food, Eat Together. We will be continuing this chapter in our next part. Till then, thank you for watching.